Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and a very good evening, ladies and gentlemen. I am Aryan Sachdeva, your host for today's evening, and would like to welcome you all to Yoga for You, a 7-day free holistic health workshop that has been organized by Division of Student Welfare, Lovely Professional University. So, ladies and gentlemen, next few days would be really amazing for all of you, and it has been honor for me to host this particular event. And without any delay, with a lot of virtual claps, ladies and gentlemen, I would like to request you to give a lot of virtual claps in the chat box for our today's chief guest, who is none other than worthy Pro Chancellor, Lovely Professional University, Madam Rashmi Mittal. Ladies and gentlemen, she is known for her virtues as a mentor, teacher, leader, manager, an orator, and as an innovator. Recognizing her contributions in her term as Pro Chancellor of Lovely Professional University, she is awarded with the Mother Teresa Award 2014, Rashtriya Gaurav Award 2015, Rising Star of Asia 2016, Glory of India 2016, Mother Teresa Priyadarshini Award 2016, Asia Pacific Achievers Award in Gold Medal 2018, acknowledging her excellence in the field of education. So, ladies and gentlemen, once again, with a lot of virtual claps in the chat box, I would like to acknowledge the presence of worthy Pro Chancellor, Lovely Professional University, Madam Rashmi Mittal. And ladies and gentlemen, talking about the guests, eminent guests who have been joining us. Ladies and gentlemen, talking about the guests who have joined us for this 7-day free holistic health workshop. Talking about the first one, ladies and gentlemen, he went to Europe for his 5-year PDF in the field of neutrinos, astrophysics, dark matter in the universe. He also has his interests in the field of scientific history, Vedic science, darshan, and yoga. He has been serving as the president of Yogdhara Club CU since 2014 and also serving as nodal officer in International Yoga Day CU. And ladies and gentlemen, with a lot of virtual claps, once again, please welcome Professor Physics Department, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Professor B.C. Chauhan, sir. Good evening, sir, and it is an honor to have you with us. Now, ladies and gentlemen, moving forward to the next dignitary who has joined us. He is a PhD in Vedic science and psychoneurobics from Yoga, Samskrutam University, Florida, USA, and an MBA in self-management and crisis management from Tamil Nadu Sports University, and MSc in psychology neurobics with more than 30 years of experience in various industries. His area of expertise lies in corporate training in soft skills, goal setting, and drug de-addiction. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Mahesh Dogra, sir. Now, ladies and gentlemen, moving forward to our next guest who would be joining us. She has studied from Eka Foundation, Bangalore. She has done PG Diploma in Transpersonal Regression Therapy from Netherlands and Trauma Treatment Mastery from USA, ENLP from UK. Please welcome clinical psychologist and counselor, Lovely Professional University, Dr. Shweta Bhardwaj, ma'am. Also, ladies and gentlemen, we have been joined by an eminent dignitary who has done PhD in yoga. She is also General Secretary in Yog Manthan, and she would be also talking about yoga for stress management. And she has a lot of experience in this particular industry. Ladies and gentlemen, please welcome, with a lot of virtual claps, Dr. Poonam Singh. Last but not the least, ladies and gentlemen, I would like to welcome our own personality who has worked day and night hard to make these events successful, who has been the person behind Division of Student Welfare. Ladies and gentlemen, please welcome Head Division of Student Welfare, Dr. Saurabh Lakhanpal, sir. And these all were the dignitaries who have joined us today, and it is an honor, sir and ma'am, each one of you, to have you with us for this workshop. Now it's time, I guess, to for the e-lamp lighting ceremony. I would like to request technical team to kindly go forward with this. And talking about India, we have a different space for lamp lighting ceremony in all our halls. This technical team.
Thank you so much, Technica team, for this wonderful e-lamp line. And yes, ladies and gentlemen, now I would like to request Head Division of Student Welfare, Dr. Saurabh Lakhanpal sir, to please come forward and acknowledge the audience about this event. Very good evening to one and all present here. I heartily welcome our chief guest of the day, Ma'am Rashmi Mittalji, as chief guest of this event, where we are going to start and have an inaugural session of this 7-day workshop on occasion of International Yoga Day. I also heartily welcome all the keynote people, all the keynote speakers and the resource person of this yoga, professor from Central University, Himachal, who will be having keynote address today. Professor B.C. Chauhanji, I welcome you. And I also welcome Shweta ma'am for being here on this platform. I also welcome Dr. Poonam Singh ji. And I also welcome all the heads, faculty, staff members and students today here on this inaugural session of 7-day workshop, which we are calling as Yoga for You. So we have kept a specifically named Yoga for You. I'm sure that whenever you hear the word yoga, you generally tend to have an imagination in your minds that you are going to have a painful asanas, you are going to have a painful postures for few days. But dear friends, believe me, doing only yoga asana is not the yoga. So we are today here with this 7-day program to make you understand more about yoga. When whole of the world is gearing up for this International Yoga Day, which is to be celebrated on 21st June, we will also try to unravel the various strengths of yoga through this 7-day program. I remember a small story when students come to my office and generally says, "Ki sir, this teacher screams a lot in the class or gets angry whenever we do something different." Aryan is already laughing on this example. And at times students also say, "My classmates also bully me." So cannot we do something for our teachers and the fellow students that they get little less angry and we are more comfortable in the classrooms? So I always say that yes, our education system is to be more strengthened in a sense that we need to teach all those skills to our students, faculty and staff which make them more stable. So similarly, this International Yoga Day, we have tried to touch the various aspects of yoga to achieve all these things. That means first to make ourselves a better human being, better version of ourselves. Yoga will also in these 7 days we will try to enhance your physical flexibility too. So yes, of course, asana is around that. But more important thing is in these sessions we will try and improve our balance and coordination. Now this balance can be in environment and human individual, which is lacking, and corona pandemic is the example of the same. So these type of balance and coordination has to be stricken not only externally between environment and ourselves, even within ourselves also, that is between our body, mind and soul. So this yoga workshop will help and achieve that also. Yes, it will also help you improve your focus and concentration, either it is examination days or examination, or you are working on a research project. Definitely this workshop is going to teach you certain tips and tricks like that, where you can have better focus and concentration. But most importantly, this will also boost our self-esteem and confidence. We will become more tolerant. So yoga is not something miraculous which is going to do miracle, but yes, of course, it is going to give us the strength to navigate between the life challenges with little ease. So whosoever is practicing yoga has little ease towards navigation of these life challenges. And if I talk about the topics that we have chosen, first day we will be talking about the Suksham Vyayam and Pranayam. That is light exercises and pranayam, which will be today, and it will be taken by Professor Dr. B.C. Chauhan from Central University, Himachal Pradesh. And then second day, we will be talking about the chakra healing. So as in modern system, we call it as nervous system, endocrine system, hormones and other control system. So similarly in yoga, they are known as chakra. So to talk more about chakra healings will be day 2, and Dr. Mahesh Dogra ji will be talking on the same. Then yes, lot of world is nowadays talking about immunity. But dear friends, it is not only the body immunity, it is also the emotional immunity. If you are happy at your family, if you are happy with your friends, definitely these type of emotions, when you are into the feeling of more intuitiveness, more gratitude, more love, more peace, more selflessness, it is definitely going to give you more immunity.
So on the third day, Dr. Mehul Dogra ji will be talking again on strengthening of emotional immunity. Then Dr. Shweta will be talking on day 4, that is 18th June, on holistic healing in COVID times. So she will be talking about certain modern management, also some psychological counselings also, and all other aspects that are around COVID pandemic. So she will talk around the same. And then Dr. Poonam Singh, they will be talking about stress management through yoga. And then there will be the final day on 25th, where I'll be talking more on health and lifestyle practices related to yoga to make ourselves better human beings. So this is the how program is structured, and hope to have a great program in future. And we have 100 plus registration for this program. I am happy for that. It was all volunteer registration that we called through our university management system, and looking into the response, we are very excited and enthusiastic to conduct this 7 day workshop on the occasion of International Yoga Day. Thank you, Ji. Thank you so much, sir, for these words of wisdom. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite a woman who has worked day and night hard to make this university what it is today. The chief guest of today's evening, worthy Pro Chancellor, lovely professional university, Madam Rashmi Mittal, for the inaugural address. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. Aryan. Uh, Good evening, everybody. There are speakers from different fields, head of Division of Student Welfare, and my dear students. So it's a wonderful opportunity for all of us to celebrate this International Yoga Day in this particular way, the way we are going to celebrate for these days. First of all, I think we all need to understand the importance of yoga, and especially this International Yoga Day, which is being celebrated all over. So I think this is a very different concept which we started, and all people, all citizens of this country and other countries, when they are celebrating, when they are doing yoga together as community. So I think it's a great benefit to all of us, because the kind of energy we all radiate, right? The positive vibrations that we all radiate, that brings all of us in harmony. So I think it's a very different concept, and all of us are blessed to be in India, where yoga originated. So and my students are going to be benefited by the wisdom of all these gurus, because they have excelled in their different capacities. So it's a very good effort by student welfare and the students of LPU. I really like the concept, Saurabh, because the kind of people you brought in as speakers, they are from different fields, and Right. it's very important. It's very important for these youth, to understand that it's not only the physical maintenance of health which is required; it is the mental also. So what we are facing today is because of COVID also, and otherwise also. I think the mental stress is increasing. So we're not understanding because we are very confused, because there's so much of opportunities all over, and we are confused what to do. So I think it's very important to be calm within, right? To be calm within and understand the things which are going inside our body, inside the mind. So how do we do that? I think yoga is a very different and a unique concept. I mean, I can't tell you unless you practice, right? So all the children from my side, I would tell you, please try to practice yoga, because it's really going to, I don't know how many of you are practicing out of these 100. I'm sure if you are practicing, very good. If you are not, try to do that, because it makes your body healthy, one. Second, it maintains your mind, which is very important, right? So don't be confused, just be calm within and understand and life in a better way, so that you are able to take better decisions. Today, what is happening, because of the confusion in the mind, we are not able to take good decisions, calm decisions, which is beneficial to yourself and the society. So it's very important to be a part of this yoga and the kind of gurus we've invited. I'm sure you will understand the benefits of a healthy mind, healthy body, and the psychology around it. You know, so I'm very happy with the concept that you have laid out, and all my students. I think I don't know if the registration is closing, but if it is, if somebody wants to enter tomorrow, also they should be allowed to, because
It's a very even I'll try if I could be a part of uh, certain addresses, because this is a wonderful opportunity for all of us to grab it. So thank you so much, Saurabh, Right, ma'am. for creating such wonderful experiences for the children. And we make sure that the students are there and are benefited. And if there are any questions or any feedback from the students, we should be welcoming them so that we can improve and improve our way of transmitting these kind of things to the students, because this is the need of the hour. We need to understand this is the need of the hour. And I am personally talking to a few students, and I'm realizing that because of COVID, the families on the whole also are sad, and the sadness is being transmitted to the youngsters. Yeah, so I think this kind of workshop is going to pull them off and will help them or benefit them truly. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your kind word. And this is completely, ma'am, open workshop. We have kept every day open for registration, because more or less all these sessions are going to benefit the students independently also, in even if they have not attended a 7-day workshop as a complete package. Nice. So, One more tip, one more thing which I would want from the gurus is that if they can just give them little tips on how the students can practice these and make them a part in their everyday life, right? So there are some practical tips which we can apply. Maybe say something which could be done in the morning time or afternoon. Some smaller things in bits and parts which the student can practice. Because sometimes, so students. Uh, I mean, I don't know how many of the students actually want to do it. Sometimes, they want easier ways or quicker ways. So if we can, help them creating those kind of modules. So we can tell them that in the end, probably they can give them some capsule modules kind of a thing which the student can just gallop in. right, right, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am, for these bodacious words. Thank you so much once again. Thank you, Aaron. Thank you, Beta. Thank you. And now, ladies and gentlemen, moving towards the very first session of this workshop, I would like to welcome our today's guest, who is physics professor in Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. B.C. Chauhan, sir, for the session related to Sukshma Vyayam and Pranayam. Okay, namaste to all, and having a very nice time all around. You will be watching and connecting with people, having an environment of yoga all around, because International Yoga Day is very close, and you will see that all around we see this vibration of yoga. So I'm thankful to lovely professional university for inviting me, and thankful to Dr. Dogra, who made me to connect with you people all, and to have a session with you. Being a man of physics, that is the hardcore science, traveling all around the world, and there is a famous saying, neither east nor west, India is the best. That's what I found. So whatever the culture that we have, whatever the knowledge tradition that we had so far, I mean, since the long time in the history, that is really a wonderful, legacy that we should carry forward, and our children, our next generation should definitely know about it, and should carry it forward. And yoga is one of that. Yoga. This is a little bit unfortunate part. I would say मैं थोड़ा सा हिंदी में आना चाहूँगा, because if there anybody who doesn't understand Hindi also, ऐसा तो नहीं है कोई जो हिंदी समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना कोई? May I know, please? No, sir. Okay, fine. So Hindi सबको समझ में आती है. That's good. And I will be talking in Hindi and English both. So my point was that today हम लोग जो है आज योगा को योगा करके we are more more understanding that
learning this as yoga, but not yoga. Yoga means it's a English word, writing yoga as yoga, Y-O-G-A. So A is a, kind of it's a supporting vowel that is put there. So वो चीज़ वहाँ पर लगाने से हमें योगा करके हम इसको बोलते हैं. तो योगा करके हम इसको आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन सही मायने में ये योग है. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उस चीज़ को भूल गए. जब बाहर के विदेशी लोगों ने इसको पॉपुलर किया एज ए योगा, सो हम लोगों को देन वी स्टार्टेड टू थिंक सी अराउंड कि ऐसा कुछ है कि हमारे ग्रंथों में भी है, या हम व्हेन दे वर पॉइंटिंग अस टुवर्ड्स इंडिया, when they were pointing that this tradition is of India. So इंडिया का जो नॉलेज बेस है, इंडिया का जो सारा ट्रेडिशनल बेस है, that is really wonderful, my dear friends and my dear students. For me, for example, being a man of physics, that is a hardcore science. Man of that, I'm so much influenced, and that's why I'm here today with you. मैं आपके साथ आज हूँ. इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि मेरा इंटरेस्ट पहले से रहा है. जब मैं when I was doing MSc in physics from Shimla University way back in 90s, and then it was मैं साथ साथ पढ़ाई के साथ I used to learn Vedas. I used to attend the class of Vedas. फिजिक्स के साथ MSc फिजिक्स के साथ में वेदों की क्लास भी लगाता संस्कृत डिपार्टमेंट में जा करके, जस्ट एन हॉबी, जस्ट एन स्पेशल रिक्वेस्ट टू द चेयरमैन. और साथ में योग का भी मैंने डिप्लोमा उस वक्त किया था यूनिवर्सिटी से वे बैक इन 90s. तो कहने का मतलब है दैट इज इट्स अ मैटर ऑफ हॉबी ऑल्सो, बट मैं ओवरऑल एक आप में दैट्स वाई मैं एक व्यू आपको देना चाहूँगा ओवरऑल सभी मित्रों को, टू ऑल, कि हम जो है हमारे पास जो ट्रेडिशन, जो योग की जो ट्रेडिशन है, ये नॉलेज, इसके अलावा बहुत सारा नॉलेज बेस है हमारे पास में. सो वी विल टॉक, वी कैन हैव अ डिफरेंट टॉक ऑन दैट. उस विषय पर डिटेल में हम बाद में टॉक कर सकते हैं. लेकिन योग के ऊपर विषय की बात करें तो योग भारत का दर्शन है. भारत का दर्शन जो है, ये योग एक प्रैक्टिकल दर्शन है, एक साइंस है. और साइंस को दुनिया ने जब स्वीकारा तो भारत की तरफ भी थोड़ा सा यहाँ के लोग भी जानने लगे. हालांकि अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट एट दैट टाइम ऑल्सो. जब 90s में मैं योग का डिप्लोमा कर रहा था, आई रिमेंबर कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्लास एंड ऑल सभी बोलते थे कि ये तो बाबा बन रहा है, ये तो योग क्या पढ़ाई कर रहा है, योग ये तो बाबू का काम है, हिमालय में जाकर उन लोगों का काम है. तो मुझे भी लगता था कहीं ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं है सच में. तो लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट था. लेकिन आज स्थिति ईश्वर की कृपा से सारी स्थितियाँ, जो योग का जितना प्रचार प्रसार, इसका जो एडवर्टाइजमेंट, इसका जो पब्लिसिटी, इसका जो इफेक्ट्स, इसके जो साइंटिफिक इफेक्ट्स लोगों ने देखे हैं, वो जो दुनिया में जो देखने को मिले हैं, दैट दे आर वंडरफुल. और इसलिए लोग आज समझने लगे कि योग इज़ बेसिकली साइंस. आज हम कोरोना काल की स्थिति में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी डिमांड चारों तरफ लगी. हमने देखे सिलेंडर के लोग कितने हज़ार पे किया और मुश्किल से रो पीट के कैसे लाइन में लगे रहे. बहुत सारे लोग सिलेंडर ऑक्सीजन के बगैर ही अपना शरीर छोड़ गए बेचारे. तो ये चीज़ें हमारे अंदर जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने, नेचर ने 2 सिलेंडर दिए हैं, उनको अगर हम ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे तो बाहर से आवश्यकता हमें पड़ती है. तो इसलिए ये चीज़ें, ये तो एक फिजिकल पक्ष है. योग तो बहुत बड़ा इससे भी आ गया. हम योग का तो बहुत लंबी हिस्ट्री है. भगवान शिव से हम यहाँ जब आप योग का इतिहास पढ़ेंगे तो महायोगी जो है, आदि योगी शिव ही वो हैं. तो शिव से लेकर योग कैसे पार्वती के थ्रू आगे सप्तऋषियों में जाके, सप्तऋषियों के बाद आकर के नीचे जो है वो पूरा प्रचार प्रसार समाज में होता है. और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी आप देखेंगे गीता में योग कर्म सुकौशलम करके बोलते हैं. और यू कैन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज ऑल्सो सेड इन गीता, भगवद गीता. तो ये सारी चीज़ें जो है योग के ही अलग अलग प्रकार हैं. तो योग दर्शन फिर आकर के जाके पतंजलि ऋषि जो है, लगभग हमारे 2500 वर्ष पहले होते हैं. और पतंजलि ऋषि जो है इसको 8 अंगों में योग को रखते हैं कि अष्टांग योग जिसको बोलते हैं. तो अष्टांग योग में हमारे पास यम, नियम,
प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये इतने अंगों में 8 जाके अंगों में धारणा ध्यान समाधि तक आप जाने की स्थिति जब पे होते हैं, तो समाधि जो है वो आपका अंतिम स्थिति है, वो सही मायने में योग है। योग का मतलब ही युज धातु, संस्कृत की धातुएं होती है संस्कृत में, वो धातु एक युज धातु होता है। युज धातु का मतलब है जोड़ना, कनेक्ट, टू कनेक्ट। तो कनेक्ट किसके साथ? ईश्वर के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, सोल को एक जगह जोड़ना, ये भी योग ही है। हम इसमें समाज में रहते हैं, हम समाज में एक दूसरे से जुड़कर रहें, मिलकर रहें, ये भी योग ही है। हम प्रेम भाव से जहाँ भी कनेक्शन है वो दैट इज योग। तो योग तो एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा विस्तृत, जो अंतिम जो इसकी लक्ष्य है वो समाधि है। समाधि मतलब अपने आप को टू नो द सेल्फ, टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, ये अल्टीमेटली जो है इसका योग का लक्ष्य होता है। लेकिन फिर भी अगर हम यही भी शायद एक कारण रहा होगा, शायद योग इतना पॉपुलर नहीं, बीच में कुछ कालखंड में गुलामी का ये जो दूसरा कालखंड, संघर्ष, विदेशियों के साथ संघर्ष, लुटेरों के साथ संघर्ष हमने झेला है, और उस वजह से हमारा जो है यहाँ मेथडोलॉजिकली भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इसको, हमारे ये ट्रेडिशनल कल्चर को ख़त्म किया। तो इन चीज़ों के बावजूद भी ये चीज़ें रही हैं, ये बड़ी बात है। तो योग उस कारण भी शायद हम ये समझते थे कि भी हिमालय के या गुफा में रहने वाले योगी है, वही लोग इन समाधि के बारे में सोच सकते हैं। हम तो संसारिक आदमी है, हम तो इस बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारा तो अपना जो चल रहा है, आई जाए जो जैसी चल रही है वैसे हम चलते रहें, खुश रहे, प्रसन्न रहे, बस वो हमारे लिए वही योग है, इतना ही। लेकिन फिर भी अगर हम वो कारण रहा होगा शायद कि लोग समाधि की जब बात करते हैं, यम नियम की बात करते हैं, यम नियम, अष्टांग योग में यम नियम आते हैं। जब यम नियम का आप ढंग से पढ़ेंगे योग दर्शन में, तो हम बोलेंगे यार ये तो योग तो हमारे बस का काम नहीं है। उसमें यम नियम में ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो अपने बहुत ही व्यवहारिक हैं और जीवन के हैं, अपना शरीर के शुद्धि के लिए है, अपने कुछ अपने आप को डिसिप्लिन की बात है, और अपने आप को एक मानसिक तौर पे भी प्योर करने की बात है, वो ट्रेनिंग है। लेकिन जब ये बीच में ऐसा कालखंड आया, बीच में टाइम आया, तो मैं देखा हूँ लास्ट 2 डेकेड्स और 3 डेकेड्स, उसमें जो है योग का जो प्रचार ज़्यादा आसनों और प्राणायाम की तरफ चला गया। तो आसनों और प्राणायाम में चला गया जब, तो आसन में तो फिर आसन तो सभी लोगों को करने का बड़ा आनंद लगता, अच्छे लगते हैं, और कर भी लेते हैं और आनंद से करते हैं, और उसके लाभ नजर आए। दैट वाज रियली बेसिकली माइलस्टोन फॉर द मॉडर्न सोसाइटी कि नहीं, आसनों से कुछ लाभ होता है, कुछ फायदा होता है योगासन करने से। नॉर्मली एक्सरसाइज आप जिम जाते हैं उससे नहीं फायदा होता जो आसनों से होता है। अब उसके बाद जो है हमारे पास प्राणायाम तो फिर और भी ज़्यादा। प्राणायाम 2000 में मुझे याद है, आप लोग भी, यू मस्ट बी ऑल्सो रिमेम्बरिंग कि प्राणायाम जो है वो हम बात करते थे शुरू में, लगभग 15-20 साल पहले। तो ऐसे बोलते थे फूंक मारने से क्या होता है, फूंक मारने से क्या कोई बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा मेडिकल का जो इस तरह का परसेप्शन था सोसाइटी में कि भाई ये तो सारा नॉनसेंस है, ये फूंक मारने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये फूंक मारने का तरीके ढंग से जिस ढंग से प्राणायाम को बताया गया, इसकी अगर शक्ति, इसकी इफेक्ट अगर बाद में हमने देखे, तो साक्षात हम देख रहे हैं आज की डेट में हमारे को शारीरिक तौर पे अंदर से जो प्योरिफिकेशन हो रही है, तो सारे प्राणायाम से हम कर रहे हैं। और शारीरिक बाहर की जो फिजिकल पार्ट का जो वो वाला जो स्थूल पार्ट है, मटेरियल पार्ट ज़्यादा मोस्टली वो हमारा आसनों से ठीक हो रहा है। तो ये तो चलो शरीर और इसकी हमारे शरीर का ही सूक्ष्म पार्ट की बात आई, कहीं ना कहीं वो हमें वो अंदर मन की तरफ ही ले जाता है प्राणायाम जो है। लेकिन पतंजलि ने तो 8 अंगों की बात की है, तो उस 8 अंग में तो हम नहीं जाने वाले हैं, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर हम आसन और प्राणायाम के ऊपर भी स्थित रहें, तो ध्यान तो छोड़िए, ध्यान के आसन और प्राणायाम के ऊपर स्थित रहे, तो हमें बहुत सारा शारीरिक मानसिक बहुत सारी जो है वो बीमारियों से तो हमें फ्री होते हैं। लेकिन हम जो जैसे छात्रों की बात की, जैसे मैडम रश्मि मित्तल जी ने कहा कि छात्रों को जो स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ टिप्स दें, तो मैं ये छात्रों के लिए तो यही कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को, छात्रों का काम क्या है, स्टूडेंट्स का क्या काम है? स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, है ना।
हमारे संस्कृत में बोलते हैं सुखार्थीनम कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थीनम सुखम, मतलब सुख चाहने वाले के लिए विद्या नहीं मिलेगी, और जो विद्यार्थी है वो सुख की चाहना करे, ये फैक्ट है। अगर हम सोचे कि हम आनंद भी लें और हम पढ़ाई भी करें, वो मतलब कुछ आनंद का मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आनंद का मतलब ऐशो आराम वाला की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जाएंगे तो आप डिसिप्लिन अनुशासन छोड़ देंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको डिसिप्लिन अनुशासन में रहना, तो आपको उसी तरह से ही सिंप्लिसिटी में और बिल्कुल अनुशासन में रह करके ही आपको करना है। तो मतलब सबसे बड़ी बात तो हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो हमारा अपने आप को डिसिप्लिन करना है, और डिसिप्लिन योग सिखाता है। आपको सुबह कितने बजे उठना है, आपको सुबह के टाइम जो है हमारे पास जैसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे 5 बजे। बातें तो बहुत आसान लगती है बोलने के लिए, उठना सुबह का उठना सबके बस का काम नहीं है, तो लेकिन फिर भी 5-6 मतलब सबसे बड़ी बात जो आप विद्यार्थियों ने रखनी है, मैं आप लोगों के लिए टिप्स दूंगा, थोड़ा सा मैं प्राणायाम का भी जो टचिंग दूंगा आपको, और हल्के से सूक्ष्म व्यायाम भी कराऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मे भी ऑफिस में भी बैठे हैं लोग, तो उनको तो फिर उतना तक ही हमें करवाना पड़ेगा। सो बट स्टिल मैं थोड़ा सा बीच में आपको बताता रहूँगा, जैसे टिप्स की बात की मैडम रश्मि जी ने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो है वो सुबह का जो विद्यार्थी के लिए सबसे पहला तो टिप्स है जो है वो है आपको डिसिप्लिन अनुशासन। अनुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है जीवन में, अगर कुछ भी आपने अचीव करना है तो अनुशासन में मतलब आपको टाइमली सब कुछ करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो भी, और एक आदत हो जाती है, बन जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, जो है छोड़ने की, यार बाद में करता हूँ, थोड़ी देर बाद में करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ये जो आदत होती है इस आदत से बचना है। ये आदत जो है मतलब बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करे अब। मतलब कहने का मतलब जो आपको करना है वो करना है उसी वक्त, ऐसा वो अनुशासन है। टाइम का मैनेजमेंट जो है, टाइम इज लाइक ए ट्रेन स्टेशन में आई, जितने मिनट रुकना उतने मिनट रुकना। आप थोड़े लेट हो गए तो भैया रोको गाड़ी, ट्रेन को रोको, मेरे को थोड़ा चढ़ने दो, मेरा भाई आ रहा है, मेरी माँ आ रही है, मेरा दादा आ रहा है, तो कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आप जिद करोगे तो आप पटरी के नीचे भी आ सकते हो। तो कहने का मतलब टाइम भी कुछ ऐसा ही है, हमें टाइम के साथ ट्रेन की तरह जो है उस तरह से समझना है, और फैक्ट है। और मैंने जीवन में देखा भी है कि अगर हम टाइम का रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम को हम ऑनर देंगे, तो टाइम हमारी ऑनर करता है। कैसे बोला, मैंने ऐसी चीज़ें देखी है, जैसे मान लीजिए मैं किसी स्थिति में जाकर, ऐसी स्थिति में होकर के मैं लेट हो गया हूँ, और बड़ी क्या बोलते हैं उसको ना, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में मैं वो उस इवेंट को या उस चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में वो था कहीं चला हुआ, क्योंकि मेरे पास वो इस तरह का, मैं ऑनर करता हूँ टाइम को, मुझे चिंता थी। लेकिन ऐसा कोई मिल जाती है मुझे, ऐसी कोई लिफ्ट मिल जाती है और वो मैं जाके टाइम नहीं पहुंच जाता हूँ। तो मतलब ऐसे चीज़ें टाइम का जो है वो बिल्कुल अपने आप अगर ऑनर करेंगे तो हमें ऑनर उसका मिलता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहली बात तो है कि डिसिप्लिन अनुशासन में रहें, और अनुशासन में मतलब आप सुख के लिए ज़्यादा ना भागें कि हम क्योंकि सुख जैसे हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन नॉलेज की बात कर रहा हूँ, भारत का ट्रेडिशन नॉलेज तो जैसे 25 साल तक जो हमारा बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पीरियड रहता है। ब्रह्मचर्य मतलब आपको अध्ययन करना है, आपको विषयों में नहीं घुसना है, दूसरे विषय में किसी प्रकार के, आपको सिर्फ अध्ययन ही करना। तो 25 वर्ष तक जब आपका पूरा एक करियर मेकिंग का टाइम होता है, उस टाइम में आपको पढ़ाई ही करनी है, और पढ़ाई के आसपास जितना भी उसके करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर ध्यान देना है। करिकुलर एक्टिविटी आपकी स्पोर्ट्स, गेम्स, दूसरी और भी म्यूजिक, डांस वगैरह चीज़ें भी आ सकती है, योग भी आपका उसका पार्ट होगा। तो मेरा मतलब वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सुबह जो है आप टाइमली उठ सकते हैं, टाइमली उठेंगे तो आप जो है सवेरे जो है अगर योग का आप बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई भी रेमेडी आपके लिए नहीं है। अगर जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ अगर योग को बना दें, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को, कि उन्होंने इतना प्रयास करके विश्व की एक सामंजस्य तैयार करवाया, और इसको इंटरनेशनल योगा डे जो है वो भारत इसका स्थापित किया। आज 7वां इंटरनेशनल डे योगा डे इस बार होने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें को उन्होंने जो करके भारत का गौरव तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन विश्व को भी एक रास्ता दिया, भाई ये धर्म से ऊपर उठो,
जाति पाति से, दूसरी चीजों से जो डिफरेंसेस है उससे ऊपर उठो, और ये चीजें साइंस है, इसको करिए। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, दिस एंड दैट। वो किसी को देखने वाला नहीं है कि ये वो है, ये धर्म का या दूसरा, ये इसको नहीं होगा फायदा, इसको होगा। सो दिस काइंड ऑफ दिस इज ए प्योर साइंस एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो ये चीज अगर हम समझे, अगर लाइफ स्टाइल में अगर हमारे जीवन में ये उतर जाए, मेक इट ए काइंड ऑफ हैबिट, कि हमारे पास अगर आज योग, हमने सुबह योग नहीं किया, ज्यादा ना रखे, मैं बोलता हूँ ज्यादा ना रखे, मैंने अनुभव किया है, ज्यादा ना रखे तो आप इसको 20 मिनट करें, 20 मिनट करें और शांत में बैठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज, क्योंकि ये यंग है, आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, तो यू शुड ऑल्सो हैव सम मूवमेंट्स ऑल अराउंड एंड सम, रात का थोड़ा सा स्टिफनेस होती है बॉडी को, उसको थोड़ा सा ईज करना होता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान पे इस तरह से बैठे, तो आपको सारी चीजें जो आपने यहाँ पर 7 दिवसीय जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें मैं देख रहा था 7 प्रकार के आपने कुछ इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो आयाम आपने जोड़े हैं, और जो आप करवाने वाले हैं, सीखने वाले हैं यहाँ पर, तो सारी चीजें आपको जो है वो उसका लाभ मिलेगा अगर आप इसको जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो योग के साथ जुड़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप इन 7 दिनों, जो आपके जो 7 दिन चल रहे हैं, इसमें आप अपना करिए, और इसमें जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिशा इसमें से डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे, व्हाई शुड वी गो अबाउट। देयर आर सेवरल योगा स्टाइल्स, इट्स नॉट ओनली कि जैसे कोई एक करवा रहा वैसे है, देयर आर सेवरल, क्योंकि योग एक बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। और मैं जैसे योग की बात कर रहा हूँ, इससे जुड़ने की बात है, जुड़ना मतलब फाइनाइट विद इनफाइनाइट, हम अगर फाइनाइट है तो इनफाइनाइट के साथ जुड़ना है, लिमिटेड विद अनलिमिटेड, हम लिमिटेड है तो अनलिमिटेड के साथ जुड़ना है, दैट इज योग। और आपको एक कनेक्टिविटी विद द पीपल, यू हैव टू, अगर आपको कहीं भी वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड बी पुटिंग 100% इन देयर। आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो आप 100% पे दीजिए उसमें, वही आपका योग है, वही आपका अभ्यास है। वो तब होगा मन नहीं लगता पढ़ाई में, काफी देर तक आप बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर तक, आपने महसूस किया होगा सभी ने, लेकिन ये तब होगा अगर आप अभ्यास करेंगे। महाभारत में भी ये आपको देखा होगा, आप गीता में एक आता है प्रसंग आता है, जो जहां पर अर्जुन बोलते हैं कि मन का तो यही तो, कृष्ण को पूछता है अर्जुन कि भी मन ही तो है, मैं इसको कैसे संभालूं। बोलते हैं मन को वो रखो, इकोनॉमिक्स जो उसको स्टेट में रखो, इसको स्टेबिलिटी वाली संत वाली स्थिति मन को रखो, शांत रखो, विषम स्थितियों में भी शांत रखो मन को। अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध स्थल में खड़ा हूं और इतना चारों तरफ से हाहाकार और बड़ा एग्रेसिव एनवायरनमेंट है और एक दूसरे को मारने को पड़े हैं, और मैं कैसे शांत रहूं, मैं कैसे किसी को करूं। लेकिन मैं शांत अब मारूं तो, अगर मैं मारूं तो वो अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, वो भी समस्या, बड़ी दुविधा में, बहुत कंफ्यूज स्टेट है अर्जुन की उस वक्त। लेकिन हमारे जीवन में देखेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जीवन एक स्वयं अपने आप को अर्जुन की तरह ही माने। तो सारथी कौन है हमारा? ईश्वर है हमारे अंदर, जो हमारे को कुछ लाइट देने वाला, बताने वाला, वो सारथी है। तो कृष्ण जो है वो बोलते हैं उसको, अर्जुन को कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय, कहता तू अभ्यास करेगा तो मन शांत तब आएगा स्थिति में, अभ्यास नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभ्यास करते करते आप योग की दृष्टि से अगर अभ्यास करेंगे, अब योग अपने जीवन में अपनाएंगे, तो अभ्यास करेंगे उसका, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और आपको जो है ना, वो जैसे भी चर्चा में भी आई थी बात कि यू कैन सिट फॉर लॉन्ग, फॉर स्टडी, फॉर यू कैन फोकस, यू कैन डिवोट मैक्सिमम डिवोशन आप दे सकते हैं। मैं एक और चीज नोट की बच्चों में आज की, क्योंकि हम तो वी आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट फॉर फॉर लाइफ, हम इसी को देख रहे हैं। तो हमने एक चीज देखी कि बच्चे आजकल, हमारी जो जनरेशन है, दे आर दिन को अपने कई प्रकार की इसमें रहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन भी कई प्रकार की रहती है, क्योंकि एक तो खासकर सोशल मीडिया, दूसरी चीजें मोबाइल फोन, सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा इसको अभिशाप ही होगा अगर इसका हम नेगेटिव डायरेक्ट, इसका जो गलत उपयोग करेंगे। लेकिन इसका फायदा है, वो उस स्तर पे हम कितना करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि कितना हम उसका फायदा ले पा रहे हैं। जैसे हम अभी मीडिया के आपके साथ में कनेक्ट हो पा रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऐसा यूज हम कर पा रहे हैं, कितना कर पाए। क्लासेस घर से, कोरोना काल में घर से क्लासेस लग रही है, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तो बढ़िया चीज है। लेकिन और इन्फॉर्मेशन भी कई बार एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट्स गुड। वी सी समथिंग व्हिच इज अदरवाइज बियॉन्ड अवर अप्रोच। आज की डेट में गूगल सर्च करेंगे तो आपको कोई भी वट एवर यू वांट टू सी,
you can you can get a history of that all immediately within fraction of seconds. हम जब आप देखते होंगे हमारी एज के जो प्रोफेसर्स हैं वो सबने देखा होगा कि कोई रिसर्च पेपर हमारे टाइम में ढूंढना होता तो लाइब्रेरी में घंटों लग जाते थे, तब जाके कोई एक पेपर निकलेगा कहीं ढूंढ ढूंढ के, और फिर उसके ऊपर हम फिर, क्योंकि हमें तो वो पेपर भी सोने की तरह लगता था, सोने की कोई चीज वस्तु की तरह लगता था कि ये मिल गया मेरे को। अब मिल गया तो क्या उसमें आनंद आता था उसमें, उस पेपर को देखने में और उसको पढ़ने में। तो मतलब सही मायने में 100% हम उस पेपर में देते थे और उसी से हमारा अगला रिसर्च पब्लिकेशन हो जाता था, बढ़िया पेपर हो जाता था। आज की डेट में क्या इन्फॉर्मेशन का तो भंडार है, यूं क्लिक करो आप गूगल बटन लगाइए और इमीडिएटली यू विल सी यू नो क्या बोलते इसको, फुल हाउस ऑफ बियॉन्ड फैंटम ऑफ इंफॉर्मेशंस, मतलब लाइक वो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है पर उसका उपयोग कहाँ करना है, उपयोग तो आप करने वाले तो आप ही हैं। तो आपकी स्थिति वो ठीक नहीं है, आपकी स्थिति है डिस्ट्रैक्टेड है, इधर से उधर से हमेशा प्रेशर, कोई कुछ प्रेशर, कहीं और निश्चित प्रेशर, तो मीडिया प्रेशर, कोई सोशल मीडिया प्रेशर, कोई इधर से है, किसी ने फेसबुक में कितना लाइक किया, किसी ने नहीं किया, इसमें भी फंसे उलझे हुए कई लोग, तो बहुत सारे परेशान है इसमें भी। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि मे बी इट विल टेक टाइम, और नेचुरली शायद इस तरह की कोई स्टेडी स्टेट आएगी इन फ्यूचर वेयर वी कैन कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक स्टेबिलिटी आती है माइंड की। हैप्पीनेस के भी लेवल्स होते हैं ना, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। अरे अब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, या मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी, दूसरी गाड़ी कोई और है, तो मेरे लिए, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ तो मुझे उसका उतना आनंद नहीं है जो अगर कोई छोटे आदमी को साइकिल से आनंद मिल रहा है। सो दैट इज अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ये चीजें अलग अलग होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरह से हम अपने आप को अगर बना पाए इस स्थिति में, सो दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम एंड एवरीथिंग, वट एवर योग से हम फायदा ले सकते हैं। तो योग का विषय बहुत वास्ट है और आप 7 दिनों के कार्यक्रम प्रोग्राम में करेंगे। और सबसे बड़ा मैं स्टूडेंट्स को यही मैं कह रहा था कि जो ये नए बच्चों जनरेशन में हम देख रहे थे, मैं उसकी तरफ फिर से आता हूँ। वो बच्चे क्या करते हैं, रात को देर तक 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे तक भी पढ़ते हैं बच्चे, मैंने देखा हुआ है एग्जामिनेशन के दौरान तो 2-3 बजे तक भी पढ़ते हैं। मेरा आप लोगों से सभी हाथ जोड़ कर भी नंबर है सभी बच्चों से, स्टूडेंट से और टीचर से भी, कि आप लोग भी बच्चों को ज़्यादा बताएं आगे, क्योंकि रात को जो पढ़ना है उसका उतना लाभ नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करके देख लो। आप रात के 3 घंटे 4 घंटे लगाएंगे, सुबह जब उठेंगे आप, सुबह के आपका आधा टाइम में आपको काम बड़े आराम से हो जाएगा, फ्रेश ढंग से। कारण इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि रात को जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड इतना सारा दिन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के चला हुआ है और दिन रात ऑक्यूपाइड है, और रात को आप उसमें पढ़ाई में लगाओगे उसको, तो कितना आउटपुट आप उसको दे पाएंगे, यू नो बेटर। लेकिन सुबह जब आप रात को अगर टाइमलेस हो जाते हैं, सुबह आप फ्रेश माइंड से उठते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल कूल एंड काम, बिल्कुल शांत सरोवर की तरह है। उसमें आप जितना भी टाइम लगाओगे उसका पूरा फायदा आपको लाभ को मिलेगा, और जल्दी मिलेगा और देर तक रहने वाला लाभ मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ा मैं टिप्स आपको इस तरह का दे रहा हूँ। और योग को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाए। इतना लंबा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा शायद, और मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा टॉपिक दिया गया है सूक्ष्म व्यायाम में और प्राणायाम, थोड़ा सा मैं अभ्यास की तरफ आपको ले जाता हूँ। सो आई एम टेकिंग यू टू दैट। बेसिकली मोटे तौर पे मैंने आपको एक समरी सी बतानी थी, दैट वाज माय आई थिंक फुल माय आइडिया, और मे बी यू मे हैव सम क्वेश्चन, सो वी विल टेक दोज क्वेश्चन एट द लास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपनी स्थिति में बैठ जाएं। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, वेर एवर यू आर सीटिंग, आप चाहे कुर्सी के ऊपर भी बैठे हैं, कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, तो आप जो है यू टेक थोड़ा सा, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को ढीला होकर बैठे, स्ट्रेस ना ऐसे खींच के ना बैठे, या बिल्कुल। और पीठ को कोशिश करें कि आपको बैक में, कुर्सी में भी बैठे हैं अगर आप ऑफिस में, तो बैक शुड बी स्ट्रेट, ये कोशिश करें आपकी जो है पीठ जो है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जब नीचे बैठते हैं योग में तो हम पद्मासन लगाते हैं, या और भी दूसरे आसन होते हैं, 2-3 आसन वो भी लगाते हैं। सो पद्मासन में हम क्या होता है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका जो है ना एक स्टेबिलिटी आप में इसमें आपके आसन में आती है, आपकी सीटिंग में आती है, एंड एट द सेम टाइम योर बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। बैक स्ट्रेट होने का फायदा क्या है, एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको ऊँग नहीं लगती, आपको कोई आलस नहीं होता जब आपकी पीठ सीधी रहती है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि जो डॉक्टर डोगरा जी अभी सेशन लेंगे आगे 1-2 दिन में कभी,
जब भी होगा इनका सेशन, तो आप देखेंगे कि चक्र हमारे ऋषियों ने चक्र देखे हुए शरीर में, हमारे 7 चक्रों की उन्होंने बात की, और यहाँ तक सबसे ऊपर जो है सहस्रार चक्र, नीचे से मूलाधार चक्र से। तो ये चक्र सारे हमारी इस बैक स्पाइन पे होते हैं। और बेसिकली मेडिकल साइंस ने भी इनको आज की डेट में जस्टिफाई किया है। पहले तो चक्रों का, क्योंकि चक्र सभी के समझ में तो आते नहीं थे, और ये तो अनुभव की बात है, ऋषियों ने दे हैव एक्सपीरियंस दोस चक्रास इन द स्टेट ऑफ समाधि। और वो अब मेडिकल साइंस में देखें तो दे आर सीन एज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आपका डिफरेंट जो आपकी जो बॉडी का जो पूरा सिस्टम तंत्र जो है, वो अलग अलग सेंटर्स हैं उसमें, आपकी मेडिकल साइंस में देखेंगे आप। तो आप क्या, डोगरा जी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, डोगरा जी भी इसके बारे में जरूर बताएंगे, फ्रीक्वेंसीज की बात जो करते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे चक्र, जो ऋषियों ने, जो आप मैं को आपकी स्लाइड भी देख सकते हैं, हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, 7 चक्र में सबसे नीचे जो हमारे पास चक्र होता है, जो रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल एंड है, वहां पर जो चक्र है वो उसको बोलते हैं हम मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ऊपर ऊपर आकर के स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, ऐसे करके ऊपर तक जो आपके सहस्रार चक्र 7 चक्र बनते हैं, अलग अलग जगह पे हैं। और ये एनर्जी सेंटर्स है बेसिकली, दे आर बेसिकली चक्रास मीन दे आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स। और योग में कहते हैं कि वो इनकी जो एनर्जी जो है ना बिल्कुल शुप्त होती है, बिल्कुल शांत रहती है, और बिल्कुल कुंडली शब्द एक प्रयोग किया गया है। कुंडली जो है वो कुंडली जागरण, कुंडली कहते हो सांप की तरह जो है वो बिल्कुल आपकी जो है वो नीचे यहाँ पर स्थित होती है। एनर्जी, दैट इज बेसिकली एनर्जी। एनर्जी को सांप की तरह रिप्रेजेंट किया गया। आप देखते होंगे मेडिकल साइंस में भी ऐसे सांपों को जो दिखाया गया है, इज ए काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ इंडिकेशन इज देयर आल्सो। सो उसमें हमारे पास इसमें 3 नाड़ियां चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो बीच वाली है जो हमारी नाड़ी है वो सुषुम्ना है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में से बीचों बीच चलती है। और सुषुम्ना नाड़ी जो बेसिकली मेडिकल साइंस भी बताती है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो बेसिकली से सारा तंत्र हमारा बॉडी का जो है वो चलता है। हमारा जो भी हमारा अगर सेंसिटाइजेशन है, व्हाटएवर जो भी हमारे बॉडी का जो तालमेल, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो सुन्न पड़ जाता है या कुछ काम करना छोड़ देता है। ये हमने देखे हुए ऐसे एग्जाम्पल एक्सीडेंट वगैरह में। तो ये चीज अगर हम, और मैं आपको बताने वाला था, ऋषि जो है, ऋषि लोगों ने, उन्होंने समाधि में चीज देखी और सभी ने वो सेम इफेक्ट देखा चक्रों का। तो चक्रों का जो है उन्होंने ये देखा कि सबसे नीचे वाला चक्र है उसका रंग लाल है, रेड, और सबसे ऊपर जाएंगे तो आपका यहाँ इस वाला जो चक्र है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसका आपका वायलेट कलर, उसका जो कलर है वायलेट कलर है। आप फ्रीक्वेंसी वाइज देखेंगे तो सबसे मेडिकल साइंस में देखेंगे, विजिबल लाइट में देखेंगे, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम दैट गोज फ्रॉम 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी में जो है वो टेरा हर्ट में जाता है। तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ये एंगस्ट्रॉम में, मैं वेवलेंथ की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो उसमें जो है सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम एनर्जी जो है, दैट इज ऑफ रेड कलर, एंड दैट रेड कलर इज हियर, दैट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऋषिस। तो कहीं ना कहीं वो ऋषियों ने, भले ही उनके मेथड अलग थे, उन्होंने लैब में जाके टेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहीं जाके वो नहीं किया, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, या कोई टेलीस्कोप से कोई आसमान की तरफ नहीं देखे, लेकिन दे हैव यूज्ड देयर बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट। और बॉडी का ट्रेनिंग उन्होंने इस तरह से किया है, बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर किया, दैट इज ए पार्ट इंस्ट्रूमेंट टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द गॉड। उनका लक्ष्य सांसारिक चीजों में ज्यादा नहीं था। तभी आप देखेंगे, आप ऋषियों की बड़े जितने भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे एंशिएंट टाइम्स में जितनी भी हुई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कभी सम अदर लेक्चर वी कैन हैव ए वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर ऑन दैट। तो वो जितना भी करते थे लोग अभी ऋषियों का जितना देखेंगे आप हमारे टाइम में, तो कभी भी आप देखेंगे बड़ी मंजिलें, बड़े घर नहीं दिखेंगे आपको, दिखाते हैं जैसे हम कई रिकॉर्ड में दिखाते हैं, और उसको हम पेंटिंग में भी लाते हैं, तो एक शेड टाइप या घास वगैरह की इस तरह की दिखाते हैं। क्यों? क्या उनके पास संसाधन नहीं थे? क्या वो समृद्ध नहीं थे? क्या वो जंगली थे? क्या वो उनके पास नॉलेज नहीं था? सब कुछ था उनके पास, लेकिन देयर प्रायोरिटीज वर डिफरेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उनकी प्रायोरिटीज जो है ना, वो प्रायोरिटीज ये नहीं थी। दीज आर ऑल चेंजिंग। आप पेटेंट की बात करो, पेटेंट जो आज की डेट में, पेटेंट का कॉन्सेप्ट तो सारा वेस्ट से आया हुआ है। यहाँ तो आप देखेंगे आयुर्वेद और हमारा जितना भी क्रॉप्स या दूसरी चीजों का जितना भी भंडार पड़ा हुआ नॉलेज का, यहाँ पे सिस्टम का, दवाइयों का, दूसरी चीजों का, इवन आसनों का भी लोग पेटेंट करने लगे अमेरिका में जाके, उधर जाके योगासन का। तो ये पेटेंट वाला ये क्या है? पेटेंट क्यों? वाई पेटेंट? वाई टू बी पेटेंटेड? पेटेंटेड मीन्स हमें पैसे चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए,
That is all self, this all, beyond selflessness. ये उससे पार की सेल्फिशनेस है इसमें, इसमें मेटेरियलिज्म है, मतलब कि भाई आई टू गेट मनी, क्योंकि मैंने काम किया है ना। लेकिन ऋषियों लोगों ने जितना भी ज्ञान किया, जितना भी नॉलेज किया है, उनके लिए ये सारा एक जर्नी लगता था, और है भी सच है, ट्रूथ है ये। माया है, मिथ्या संसार, लेकिन ये ट्रूथ लगता था, मतलब उनको ट्रूथ जो है कहीं दूर लगता था। अल्टीमेट ट्रूथ इज समथिंग एल्स, एंड हम, ये हमारी जर्नी है, और जर्नी में हमारे को एक गैप मिला है दो श्वासों के बीच में, जो पेट से जब निकलते हैं तब हम श्वास लेते हैं, और अंत वाला श्वास जो जब आखिरी श्वास लेते हैं, उसके बीच का एक जर्नी है। उस जर्नी में हम कितना बढ़िया एक हमारे फेलो बींग्स के लिए कर सकते हैं। फेलो बींग्स सिर्फ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल द क्रिएचर्स, जो भी पृथ्वी है, इसको माता बोलते हैं। हम वृक्षों को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं, ये क्या है? लोगों ने बोला ये सारा ढोंग है, ये ड्रामा है। दिस इज ऑल, दिस इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी कंसेप्ट वेस्ट में बड़ा लेट आया, 16th सेंचुरी में आया। इकोलॉजी तो उन लोगों को हमारा बहुत पहले से, पेड़ का पूजा करना, नदियों की पूजा करना, या पक्षियों को, सभी को, पशु पक्षियों को साथ में लेकर चलना, वो सब यही तो है। पृथ्वी को माता बोलना, उसको माता बोल के पूजना, this is all part of the traditional knowledge that the knowledge that India है, इंडिया के पास था, और आज भी वो नॉलेज है। अब हमारी जनरेशन को, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। दे आर फेलिंग समवेयर टू टेल आवर स्टूडेंट्स। मैं विदेश में जब मैं आपको बताऊं तो एक छोटी सी करके बात हम शुरू करते हैं। विदेश का जो है वो मैंने आई वॉज देयर इन लिस्बन, पोर्चुगल। I stayed there for a longer time when I was in abroad. So वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थे, इंडियन कम्युनिटी, सो कॉल्ड, मैं इंडियन कम्युनिटी बोलूँगा, उनका ही कहना था, वो बहुत बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं वहाँ पे, गुजरात के लोग, और सारे यूरोप में, सारी जगह जगह आप मिलेंगे। उनका कहना था, ये डॉक्टर साहब आप जो है ना, एक मेहरबानी करके एक हमें करिए, मेरे को, मैं आई स्पेंड 5 years देयर, सो ऑल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं वहाँ कुछ पार्ट रुका, तो वहाँ उनका कहना था कि भी आप जो है एक कुछ, क्योंकि आई हैड एक इंटरेक्शन विद देम लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, और बातें चीतें चलती थी। और मैंने एक बार, फिर उन्होंने मुझे एक लेक्चर के लिए इन्वाइट किया, दैट लेक्चर दे पॉपुलराइज दैट नेशनल टीवी चैनल एंड ऑल। सो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप जाती बाहर, मेरे को जाना था, मेरा 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस आना था। अल्टीमेटली फाइनली आई वॉज कमिंग बैक टू इंडिया। सो वहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई एक ना कुछ आप थोड़ा सा कुछ हमारे बच्चों को कुछ बता के जाओ, कि हम दे नहीं पाते बच्चों को। हम चाहते हैं उनको कि वो मंदिर, ये गणेश की पूजा करे, ये दूसरी चीज़ें, ये इनका अपने इस धरोहर को समझें। लेकिन हमारे जनरेशन जो है वो कुछ हमसे सवाल करते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होते। तो बात भी सही है, उनके भी, हमारे दादा कहते वहाँ आए, तो हमें भी पता, इंडिया से कनेक्ट हुए, बड़ा टाइम हो गया, बीच बीच में हम तो, हमारी तो फिर भी इंडिया के साथ सांस है। लेकिन हमारे जनरेशन का तो नहीं, उनको ये चिंता थी, दे कम, जो वहाँ के लीडर लोग थे, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक बार मुझसे बात की। तो अल्टीमेटली फिर मैंने एक मोनोग्राफ उनको दिया बना के, दैट वाज डेडिकेटेड टू द एनआरआई इंडियंस, मतलब एनआरआई हिंदूज। और उसके लिए मैंने उस तरह से वो करके उनको दिया। तो कहने का मतलब वो, इट्स नॉट ए काइंड ऑफ हिंदू और एनी रिलीजन, बट द आइडिया वाज कि हमारा जो यहाँ की ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हम कितना संजो के रख पा रहे हैं, कितना हम बच्चों को दे पा रहे हैं। अब हमारी जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, क्या उनको हम सही मायने में वो नॉलेज दे पा रहे हैं, या ट्रेडिशन दे पा रहे हैं, या कल्चर दे पा रहे हैं? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अदरवाइज डिमिनिश हो रही है, इनकी नेक्स्ट जनरेशन तो बात रहेगी नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये मैं आपको यहाँ से शुरू किया था, तो हम इस स्थिति में बैठेंगे। सो ये हमारा पद्मासन लगता है, इसको पद्मासन बोलते हैं। तो पद्मासन में हम ध्यान में जाके अब थोड़ा शांत हो जाए, बहुत एग्रेसिव हो गए हम बातचीत करते करते, आपको भी ज़्यादा मैंने एजिटेट कर लिया। थोड़ा अंतर्मुखी होने की कोशिश करें, आंखें बंद कर करके, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को आपने लेना है और छोड़ना है। श्वास के ऊपर जो आपने फोकस करना है, ध्यान करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। और भाई हाथ की आप मुद्रा लगा सकते हैं, मुद्रा को ये जैसे इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, ये आप इस तरह से अंगूठी, और इसका भी अपने लाभ होते हैं, इसके लिए अलग मेरे ख्याल डोगरा जी भी इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है, आप इसको वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, जिसको जो सुविधा होती है। और बाजू को अकड़ के नहीं रखना है, सीधे ऐसे रखें। और आप अगर ऑफिस में बैठे तो वहाँ भी आप
ऐसा कुछ व्यवस्था देख लें कैसे उसके पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए। लंबा लंबा श्वास कर लें और लंबा छोड़ दें। एक बार फिर से। एक बार फिर से। ओम का उच्चारण करेंगे हम सिर्फ एक श्वास को भर करके। ओम का उच्चारण का भी एक विज्ञान है। आप कहाँ से लेकर, मैंने कहा था जैसे मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्रार चक्कर तक हम जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है वो ओंकार ध्वनि जो है एक इसका अपना विज्ञान है, और इसको कैसे उच्चारण किया जाता है इसका अपना विज्ञान है, और उसके तहत जो है इसको क्या लाभ रहते हैं वो चीज़ें सारी इसमें आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ले जाऊँ, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा टाइम होगा मेरे पास, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी 6:30 अराउंड। सो थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊं। सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं नॉर्मली। ये तो हमारा ये हो गया, पद्मासन हो गया। पद्मासन में हमने पीठ के सीधे लेकर ओम का उच्चारण किया। भस्त्रिका प्राणायाम होता है। प्राणायाम जैसे अलग अलग प्रकार, प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं। हम सिंपल रखें अपने आप को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी और उस चीज़ को हम पकड़ नहीं पाएंगे, फिर वी विल बी लॉस समवेयर। सो हमें उस तरह से सिंपल रखें। जैसे भस्त्रिका में क्या करते हैं हम, श्वास को अब लंबा छोड़ना है। तो पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा बीच में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव रहेगा। तो इसलिए आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लोज करने की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा आपको, बट फिर भी मैं इसको मीनिंग दैट आई एम समिंग इट अप। मैं थोड़ा टाइम के बारे में पूछ लूँगा, टाइम का क्या है ऑर्गेनाइजर्स, प्लीज लेट मी नो। So actually around 6:30 it was the ending time, 6:30 के आसपास। ओके, सो कैन यू गिव मी 5 मिनट्स? Sure, sure, sir. ओके फाइन। तो हमारे पास जो है ये इस तरह से बैठने के, और इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, और अपने सामर्थ्य अनुसार। इसमें जल्दी जल्दी भी करते हैं लोग, वो अगर यंग आप लोग हैं तो आप जल्दी जल्दी करें। इसका सारा उद्देश्य क्या है आपका, वो लंग्स प्राणायाम की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो लंग्स आपके जो फेफड़े जो है ना, जो सिलेंडर प्रकृति ने, नेचर ने आपको दिए अंदर, ये अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपका जो है ना, आपका बाहर की सिलेंडर के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा आपको, और कोरोना जैसी बीमारी के तो ऐसी फूंक करके उड़ जाएगी आपके सांस के साथ। तो ये आप आसन भी बदल सकते हैं। तो इसके प्राणायाम के बाद उसके बाद हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति में हम श्वास को जो है ना झटके से बाहर फेंकते हैं। इसमें भी 3 गतियां आप ले सकते हैं, 3 प्रकार होते हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। और इसी तरह आप कपालभाति के बाद जो है हम सीधा जाके उज्जाई करते हैं। उज्जाई क्या, जैसे आप लोगों के जो स्टेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या आप अच्छा गीत गा सकते हैं, एक वोकल को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसका बड़ा लाभ होता है उज्जाई के लिए। और थायराइड सबसे बड़ी जो लाइलाज बीमारी है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ऐसे करना है। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना, जितनी देर लेने में लगाया उतनी देर रोकना, फिर बाई नासिका से इसको श्वास को बाहर करना है। तो ये भी एक प्राणायाम जो है, इसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल 3-4 बार इसको कर सकते हैं, लेकिन समय टाइम का इशू है, तो इसलिए मैं आपको उसके बाद अनुलोम विलोम, जो किंग ऑफ द प्राणायाम बोलते हैं, किंग ऑफ प्राणायाम, इसको क्या है, ये नाड़ी का शोधन भी करता है। आपकी शरीर के जो सही मायने में जो कैंसर तक के पेशेंट जो इससे ठीक हुए हैं, ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसे डाटा है, और लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया। हमारे साथ भी एक एग्जांपल है, जो कैंसर का जो है उनके लाइलाज होने के बाद ठीक हुए हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं,
बाएं नस के जैसे हम भरते हैं, डीप ब्रीथ करेंगे, अंदर तक भरेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, यहीं से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, पूरा हमारा चक्कर जो है कंप्लीट होता है। इस तरह से हम अनुलोम विलोम जितना देर तक हम ले जाते हैं, जितना स्लो, धीरे धीरे इसको बढ़ाना बढ़ाना होता है, समय को बढ़ाना होता है, लंबा लंबा धीरे धीरे जाकर के धीरे धीरे उतरना है। ये अभ्यास के साथ आस्ते आस्ते हम इसको करते रहेंगे। और ये थोड़ा अभ्यास का सेशन तो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं, हालांकि मैं अभ्यास के सेशन को लेकर ही सोच के चला था, तो बीच में मुझे पता लग जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है बहुत सारे ऑफिस से भी जुड़े हैं, तो इसलिए इट विल बी बेटर टू हैव सम इंटरेक्शन एंड थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें, तो इसलिए मैंने, दैट्स व्हाई आई टेक टाइम मोर ऑन दैट। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम भी हम जाके क्या करते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम में भी साथ में यहाँ से लेकर हम करवाते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जैसे यहाँ से इस उंगली से लेकर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी हम सर्विसिंग करना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि हम बहुत सारा काम करते हैं, हमें जरूरत नहीं है योग की। ये थोड़ा सा उनकी भ्रांति को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करते हैं कुछ अलग ढंग से, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। आपके कौन से जॉइंट को कितना स्ट्रेस, कितना उसको कितना उसको ये रिलीफ मिलना चाहिए, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ घुटने के टखने के लिए भी करेंगे, फिर इसके लिए भी करेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो इस जॉइंट के लिए भी करेंगे, फिर ये पेट के लिए तो हम कर ही रहे हैं प्राणायाम वगैरह, ये लंग्स के लिए, फिर हाथों के लिए कर, जो कि सर्वाइकल के लिए बच्चों को सबसे बड़ी इशू रहता है आजकल, जो काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं या इवन मोबाइल में भी फंसे रहते हैं काफ़ी देर तक, ऐसे देखते रहते, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम में जो है ना, ये दिक्कत आती है, इशू आती है बच्चों को सर्वाइकल का और सियाटिका स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह। तो इसको ठीक, इसके लिए जो है वो आपका इस तरह से जो है इसको करते हैं, ये आप लोगों ने, डॉक्टर्स भी इसको एडवाइस करते हैं, तो इसको भी हम अभ्यास में कर सकते हैं और रूटीन में इसको करें, और यूं यूं करके, है ना, और ऊपर जा करके ऐसे करके ऊपर, फिर यूं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप, तो मैं ओवरव्यू दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है समय के ज़्यादा इधर कुछ उधर चला गया। सो ये करके हमारे पास जो है सूक्ष्म व्यायाम में यहाँ से लेकर के पूरी बॉडी का, यहाँ गर्दन के लिए भी हम यूं करते हैं, और मुंह के भी पूरे पोर्शन, दांतों के लिए, नाक के लिए, आंखों के लिए, जैसे आप घुमाएंगे यूं करके, तो आंखों के लिए भी पूरा सेशन एक पूरा होता है, 1 घंटे का सेशन इसके लिए काम पड़ता है, ये साथ साथ में पूरा करना हो तो क्योंकि समय टाइम इज लिमिटेड, सो दैट्स वाई आई हैव टू क्लोज दिस नाउ। और अल्टीमेटली लास्ट तक हम बालों तक का जो है हम वो करते हैं, तो पूरा हम सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है, पूरा हम साथ में करते हैं, और साथ में प्राणायाम भी हम करते हैं। तो ये शाम के लिए बहुत अच्छा है, और सुबह के लिए भी अच्छा है, अगर एज्ड लोग ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, जो यंग बच्चे हैं, यंग के लिए तो हमारे दूसरे वो एक्सरसाइज भी होती है, जिसको हम वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं, आसन भी होते हैं अलग अलग टाइप के करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन शाम के वक्त अगर करना हो, तो मैं इसलिए बता दें कि शाम का प्रोग्राम है, तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम हम प्राणायाम करेंगे। तो इस तरह से आपका जो ये अनुलोम विलोम हो गया, अनुलोम विलोम के बाद हम एक भ्रामरी प्राणायाम करें, जो आपका इस कपाल के लिए बहुत, आपकी मेमोरीज, न्यूरॉन सिस्टम के लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, इस तरह से हम इसको करते हैं। आप सेशन में आगे योग शिक्षक आएंगे तो वो आपको करवा सकते हैं। तो ये भ्रामरी के लिए श्वास को भरते हैं, भ्रामरी की तरह आवाज करते हैं। तो बिल्कुल आपको पूरा गुंजन जो है इस पोर्शन में रहना चाहिए, और उसके बाद हम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, और उसके साथ अंत में जो है उद्गीत और प्राणायाम, प्राणायाम होता है। प्राणायाम ध्यान में आपको वही श्वास के साथ आपको करना है, तो उसके साथ मैं आपको अभी इसको समाप्त करता हूँ। प्राणायाम ध्यान के लिए हम फिर से बैठ जाएंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, और अंदर जो है यहाँ से लेकर ऊपर तक, जैसे रीढ़ की हड्डी से लेकर ऊपर तक आप यहाँ तक श्वास को ले जाएंगे, और उसके बाद 1 मिनट 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं लेंगे, और थोड़ा श्वास को अपने वॉच करना है, या बाहर की जो आवाज़ें आपके पास आ रही है उनको वॉच देख सुनना है। धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे, मैं बोलूँगा जब, तो आप आंखें बंद कर लें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से भरेंगे, और ओम का उच्चारण करेंगे।
बिल्कुल श्वास के ऊपर ध्यान दें। श्वास जो है आपका आ रहा है, जा रहा है। बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं उनको आप सुन सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरा कॉस्मिक एनर्जी जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर के, उसको कॉस्मिक क्रीम भी बोलते हैं। कॉस्मिक क्रीम को ऐसे रगड़ करके, जैसे क्रीम लगाते हैं, और क्रीम को लगा करके एक गर्म जो हाथों को आपने आंखों के सामने ऐसे रखना है और धीरे धीरे आंखों को खोलना है, झपकना है, और फिर इसको क्रीम को पूरे आंखों में, पूरे मुंह में लगाएं। ये एनर्जी होती है। ये एनर्जी का एक्सपीरियंस जब हम पूरा सेशन करते हैं तभी इसका सही मन में इसका एक्सपीरियंस होता है, और जाके इस तरह से अपना धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा, इस तरह से वो शेड्यूल प्रॉपर ढंग से मैं आपको अभ्यास नहीं करवा पाया, तो लेकिन चलो इंट्रोडक्टरी था। आज पहला दिन था आप लोगों का, और आज पहले दिन योग का थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप मिलना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड जितना भी सेशन था, आई गेस जितना भी टाइम आपने हमें दिया, एक एक पल उसका बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। एंड मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा काम आए आज का सेशन। Thank you so much, sir. Thank you so much for taking your precious time out of your busy schedule and helping all the students of Lovely Professional University. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar, sir. And also, ladies and gentlemen, I would like to thank our chief guest of the day, worthy Pro-Chancellor, Lovely Professional University, Madam Rashmi Mittal, for joining us. And also, I would like to thank all the eminent guests who joined us today, Dr. Mahesh Dogra, sir, Dr. Shweta Bhardwaj, ma'am, Dr. Poonam Singh, ma'am, Dr. Saurav Lakhanpal, sir, all the head of schools, all the head of departments who joined us today, all the faculties who joined us today. Thank you so much. All the students for joining us. Last but not the least, all the audience who are watching us on this Facebook handle of Lovely Professional University. Thank you so much, ladies and gentlemen. And I hope today's session was really helpful, and I expect you all in other sessions too. Thank you so much, everyone, for joining this session. Thank you so much for watching this session. I hope you love this session. And this is your host, Aryan Sachdeva, signing off. Thank you so much, everyone. Thank you.